Learners, this is your trainer and guide Aishwarya Seth, welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where we are providing you complete coachings of all India competitive exams absolutely free of cost. We are giving you complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, MasterCAD, NTT, ETT, BEd, MEd, and even much more. We are planning to launch on this same channel in the coming future. This channel is a complete educational hub for the students all over India who are aspirants for cracking these exams and want to build their careers in these streams. So our mission here is to impart 100% free of cost quality education throughout India, especially to those students who can't afford these courses due to their financial conditions and any other reasons. So students, subscribe this channel, and as this channel is purely a social and charitable channel where every complete course is 100% free of cost is available to you. In UGC preparations, I had already taught you full-fledged 4 topics, that is research aptitude, teaching aptitude, communication and information and communication technology, along with their previous year question answers, practices and discussions also. So 4 complete topics of UGC paper 1 have been done in the chronological order till now, and now the 5th unit, that is higher education, is actually which is the actually 10th unit of UGC paper 1 is currently going on this channel, where I had covered various topics just like meaning and introduction of higher education, structure of Indian educational system, institutions of higher learning and education in ancient India, university education and different types of universities, and a little bit introduction of regulatory framework of higher education in India. So this much syllabus of higher education we had already done in this till now in this channel. So today I will cover the regulatory framework of higher education in detail. Important institutions in regulatory framework of higher education in detail. This is the part 1, right? So यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. अब ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है जी. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है यूजीसी पेपर एग्ज़ाम 1 में. ठीक है जी. और ये जो आप देख रहे हैं 3 इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रेमवर्क के अंदर. पॉलिसी मेकिंग, ठीक है जी, सेकंड वन इज़ रेगुलेशन एंड थर्ड वन इज़ एक्रीडिएशन. ठीक है जी. अगर आपको याद हो तो मेरी जो पिछली एक वीडियो आई थी हायर एजुकेशन पे, उस पर मैंने खुद लाइव होकर जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको एक रफ सा चार्ट बना के दिखाया था. उसमें पॉलिसी मेकिंग भी मैंने आपको बताया था कैसे कौन कौन करता है, रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडीज़ में कौन कौन सा जो है इंस्टीट्यूशंस आती हैं, और एक्रेडिएशन में कौन कौन जो है वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं. तो ये वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन की थी हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन की. आज उसी फ्रेमवर्क को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, ताकि इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हर एक डोमेन में, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी मेकिंग में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, MHRD है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, एंड स्टेट काउंसिल्स फॉर हायर एजुकेशन है पॉलिसी मेकिंग में. ठीक है जी. तो ये 4 हम आज करेंगे. साथ में क्या करेंगे आज की वीडियो में, एक्रीडिएशन का जो डोमेन है, सेकेंड डोमेन है एक्रीडिएशन का, उसमें जो है NBA और NAC NAAC इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. और जो थर्ड डोमेन है रेगुलेशन का, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. तो रेगुलेशन का जो डोमेन है दैट इज़ अ वेरी वास्ट डोमेन, वो हम पार्ट 2 में कल करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल UGC के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, AICTE, MCI, PCI, DEC, ये सारे जितने NCTE जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं रेगुलेटरी डोमेन में, रेगुलेशन में, वो सारे जो है हम कल कवर करेंगे. आज की वीडियो में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम पॉलिसी मेकिंग की सारी इंस्टीट्यूशंस जो डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, एक्रीडिएशन की दोनों इंस्टीट्यूशंस, NAC और NBA डिटेल में करने वाले हैं. ठीक है जी. तो चलिए समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और हम जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या है पॉलिसी मेकिंग में, आप देख रहे हैं पहले स्क्रीन के ऊपर 4 डोमेन्स हैं. MHRD है, AIU है मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, थर्ड में है सेंटर मतलब केब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एंड फोर्थ में है स्टेट काउंसिल्स फॉर हायर एजुकेशन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो है वो बात करते हैं. सबसे पहले क्या है प्लानिंग में, MHRD
Ministry of Human Resource and Development. So the essence of human resources and development is in education, which plays a significant remedial role in balancing the socio economical fabric of country. मतलब अब development का जो MHRD का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल और ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट लेवल को बूस्टअप करना, ठीक है जी। सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है जी। सो हमारी कंट्री में आपको पता है कि सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को मानते हैं, बिकॉज अगर वही अर्निंग करेंगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स हम प्रिपेयर करेंगे, ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे, वो अर्निंग करेंगे, उनकी अर्निंग से हमारी जो देश की जो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ठीक है जी। और उससे क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम से जो नेशनल कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ेगा एंड सो ऑन, हमारी जो है पूरा ओवरऑल जो है नेशनल कंट्रीब्यूशन में जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए जो है एमएचआरडी का ये मेन गोल है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ दी ह्यूमन रिसोर्स। इसका मेन गोल क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो एमएचआरडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है, वाज क्रिएटेड ऑन सितंबर 26, 1985 थ्रू द 174th अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ऐसे क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, सितंबर 26, 1985। किस अमेंडमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था, 174th अमेंडमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। कौन से रूल्स के अंदर, कौन से क्लॉज के अंदर, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर जो है वो 1961 का जो है ये एक्ट है, ठीक है जी। सो करंटली द एमएचआरडी वर्क्स ऑन दी 2 डिपार्टमेंट्स। अब एमएचआरडी है, इसका पूरा ये एक हेड है, एक करता धरता है किसका, पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का, ठीक है जी। अब एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, जो दोनों डिपार्टमेंट्स एमएचआरडी के नीचे आते हैं। कौन कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मतलब स्कूल एजुकेशन फुल फ्लेज फ्रॉम द प्री नर्सरी टू अप टू 12th भी एमएचआरडी के नीचे ही आता है, ठीक है जी। वही गवर्न करता है एमएचआरडी। और दूसरा डिपार्टमेंट, अब +2 के बाद जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए आगे जाता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी हायर एजुकेशन का भी जो है वो गवर्निंग, कंट्रोलिंग और मैनेजिंग कौन करता है, एमएचआरडी। तो एमएचआरडी दोनों डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, स्कूल एजुकेशन को भी देख रहा है और हायर एजुकेशन को भी देख रहा है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज़ इट्स आइज सेट ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब ये इसका एक प्रॉपर गोल है, किसका, एमएचआरडी अंडर द स्कूल एजुकेशन, उसका ये गोल है क्या, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन एंड मेकिंग बेटर सिटीजन्स आउट ऑफ आर young brigades, ठीक है। For this various new schemes and initiatives are taken by the regularly, and recently those schemes and initiatives have been started paying dividends in the form of growing enrollment in the schools। आजकल क्या चल रहा है कि स्कूल्स में एनरोलमेंट और आप कह सकते हो कि एडमिशन की जो रेशो है वो बढ़ गई है। गर्ल्स भी आजकल पढ़ने लगी हैं, पहले बॉयज़ ज़्यादा होते थे, गर्ल्स कम होती थी। अब इवन कि अगर आप रूरल एरियाज़ में भी चले जाओ, बैकवर्ड एरियाज़ में भी चले जाओ, तब वहाँ पे भी जो है गर्ल्स की रेशो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है जी। बहुत सारी स्कीम्स भी उन्होंने स्टार्ट की हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। नवोदय विद्यालय खोले हैं गवर्नमेंट ने, मिड डे मील स्कीम चलाई है, बहुत सारी स्कीम ऐसी चलाई हैं जिससे स्कूल एजुकेशन को जो है वो बूस्टअप मिले, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये भी क्या है, दिस इज़ दी बेसिकली क्या है कि एमएचआरडी ही ये सारा जो है वो चला रहा है और गवर्न कर, ताकि एनरोलमेंट एजुकेशन जो है या एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्कूल एजुकेशन में बढ़े। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन द अदर हैंड इज एंगेज इन द ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च टू द कंट्री, सो दैट इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट फाइंडिंग लैकिंग व्हेन facing an international platform, ठीक है जी। So for example, for this government has launched joint ventures and signed MOUs, memorandum of understandings to help the इंडियन स्टूडेंट बेनिफिट्स फ्रॉम दी वर्ल्ड ऑप्शन ओपिनियंस। तो यहाँ पे क्या है, हायर एजुकेशन में जब स्टूडेंट बड़ा हो जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है वो किसके साथ कोलैबोरेट कर दिया, ओवरसीज़ एजुकेशन के साथ जो है कोलैबोरेट करके, जो वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है एजुकेशन का, ऑनलाइन का, प्रैक्टिकल ज़्यादा, यहाँ पे भी इंडियन सिस्टम में प्रैक्टिकल और ऑनलाइन करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि कभी
अगर इंडियन स्टूडेंट को जब फेस करने पड़े जब कंपटीशन फेस करना पड़े इवन ओवरसीज स्टूडेंट से भी, तभी इंडियन एजुकेशन का जो स्टूडेंट है वो कहीं लैकिंग ना फील करे। तो जो बाहर पढ़ा रहे हैं वही इंडिया में पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। सो ये कोलैबोरेट है। सो यहाँ पे क्या है, MHRD का मेन गोल है कि हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी बूस्टअप करे और स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी जो है यूनिवर्सलाइज करे, सो दैट कि हर एक चीज़ डेवलप हो सके। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MHRD क्या हो सकता है, फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसी, ठीक है जी। NPE नेशनल पॉलिसी जो है बनाई है टू इंश्योर दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट, मतलब प्रॉपर इंप्लीमेंट करें, ठीक है जी। प्लान डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग एक्सेस एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग इन द रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट हैव एनी ईजी एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है जी। प्लान डेवलपमेंट है, कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम है, कुछ भी है, कोई स्कीम है, इवन कि आपने सुना होगा मूक, ठीक है जी, मैंने आपको पढ़ाया भी है, मूक पढ़ाया, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं भी है वहाँ पे भी प्रॉपर एक्सेस दिया जा रहा है जो है एजुकेशन का। तो ये भी सारी स्कीम्स हैं, ठीक है जी। पेइंग स्पेशल अटेंशन टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स लाइक पुअर, फीमेल्स एंड माइनॉरिटीज़। हमारी एजुकेशन सिस्टम में MHRD सबसे ज़्यादा जो है, अब देखिए आम जो जनता है या आम स्टूडेंट है वो तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम किसको आती है, मिनॉरिटी ग्रुप्स को पढ़ने में, बैकवर्ड क्लासेस को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, वुमेंस को जो है वो डोमिनेट किया जाता है कि नहीं पढ़ना इस तरह से, तो उनको पढ़ने में, उनको आगे बढ़ाने में MHRD का मेन रोल है। और पुअर स्टूडेंट्स को जो है वो स्टडीज़ प्रोवाइड करने में मेन रोल है, ठीक है जी। प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स, लोन, सब्सिडीज एक्सेट्रा टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, लोन्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। एनकरेजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग वर्किंग क्लोजली विद द यूनेस्को एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स एज वेल एज द यूनिवर्सिटीज टू एनहांस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं MHRD के। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, मिशन होगा, तो एज इट इज़ ही हमें जो है वो माइंड में बिठाना है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में कुछ और नहीं बना के लिख सकते कि हाँ मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, नहीं, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी को हमने जो है अपनी माइंड मैपिंग करके अपने दिमाग में बिठाना है। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में से या कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, या कई बार कोई ऐसे स्कीम्स आ जाती हैं जो लॉन्च हुई हैं, ये सारा हमने याद करना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के अंदर जो है वो दो तरह के डोमेन्स हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था फर्स्ट स्लाइड में कि स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन दोनों में डील कर रहा है। कहने का मतलब 100% एजुकेशनल कंडक्शन जो है वो MHRD ही कर रहा है। सो नेक्स्ट बॉडी देखते हैं। MHRD के बाद जो है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। जो मेजर और बहुत ही कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं थ्रू आउट इंडिया, उनकी एसोसिएशन बनी होती है। सो ये एसोसिएशन जो है वो इट इज़ बेस्ड इन दिल्ली। इट इवेल्युएट्स द कोर्सेज, सिलेबस, स्टैंडर्ड्स एंड क्रेडिट्स ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ परस्यूड अब्रॉड एंड इक्वेट्स दैम इन रिलेशन टू वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अब इस एसोसिएशन का काम क्या है कि ये परफॉर्मेंस इवेलुएटर है, किसकी सिलेबस चेक करती है कि सिलेबस जो है एज़ पर दी लेवल ऑफ स्टूडेंट डाला जा रहा है, उससे ज़्यादा या कम तो नहीं डाला जा रहा। जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको चेक करती है, बनाती भी है, अमेंड भी करती है, कोर्सेज़ को लॉन्च करती है। क्रेडिट सिस्टम जो है वो, जैसे अब यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ने कोई फ़ॉरेन जाना है तो क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, एजुकेशन के, तो उसको भी बढ़ाने की, मतलब ऐसी कोई एजुकेशन ना दें जिससे अगर बच्चे ने उसके बाद फ़ॉरेन भी जाना हो तो वहाँ पे इंडियन एजुकेशन नल एंड वॉइड ना हो। ऐसे क्रेडिट पॉइंट्स भी जो है बढ़ाने का काम करता है AIU, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि AIU के कौन कौन से जो है वो क्राइटेरियाज वो करता है, कौन कौन से करता है, कोर्सेज, सिलेबस, स्टैंडर्ड्स एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द foreign universities pursued abroad and equates them in the relation to various courses offered by the Indian universities, ठीक है जी। तो ये सारे इसके functions हैं। AIU is mainly concerned with the recognition of degrees, diplomas awarded by the universities in India which are recognized by the Universities Grant Commission, New Delhi, and abroad for the purpose of admission to higher degree courses in Indian universities. The AIU is also an implementing agency for the agreement signed under the cultural exchange programs executed between India and other countries in the field of education insofar it relates to the recognition of foreign क्वालिफिकेशंस, ठीक है जी। कहने का मतलब ओवरऑल एक
छोटा सा क्रक्स निकालें इसका तो ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को जो फॉरेन की एजुकेशन सिस्टम से जो है वो कोलैबोरेट करके जो भी कोर्सेज डिग्रीज डिप्लोमा करवा रहा है वो उस तरह से करवा रहा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने बाहर जाना हो उसको उसकी जितनी भी यहाँ पे एजुकेशन की है उसके कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलें ताकि आगे जाके वो कट शॉर्ट में पढ़े, पूरा का पूरा दोबारा ना उसको पढ़ना पड़े, ठीक है जी, जो उसने इंडिया में किया है। तो ये नल एंड वाइड ना हो जाए, इसलिए क्या है ये AIU जो है वो ये सब चीज़ें करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है केब, ठीक है जी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। दी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज द अपेक्स एडवाइजरी बॉडी। ये बेसिकली क्या है, एडवाइजरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। तो इसका नाम भी क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एजुकेशन रिलेटेड जो है वो रिकमेंडेशन, सजेशंस एंड एडवाइसेस देता है। इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1920 बट वाज डिसॉल्व्ड लेटर। इट अगेन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1935, ठीक है जी, दोबारा एग्जिस्टेंस में आया 1935 में। इट इज़ द हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट एडवाइजरी बॉडी फॉर द गवर्नमेंट इन द एजुकेशनल डोमेन। सो इट इज़ द हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट एडवाइजरी बॉडी, राइट। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है केब के, ये देखिए, to provide suggestions to all the educational institutions of the country in preparing the syllabuses। एक तो syllabus prepare करने में suggestion देता है। to provide a common platform for the state and center to share their views about improving the educational standards भी improve करने में अपनी recommendations देता है। to advise the state and central governments regarding any kind of educational questions, मतलब जो एजुकेशनल क्वेरीज होती हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने में जो है ये बिल्कुल असिस्टेंस देता है। अपॉइंट कमिटीज फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन वेरियस एजुकेशनल इशूज and to ask the expert reviews and information and suggestions from various government agencies, non-government organizations and institutions in the matter pertaining to the education। मतलब हर तरह की कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस है, एक्सपर्टीज़, सजेशन है, असिस्टेंस है, ठीक है जी, वो सारा कुछ जो है वो देता है केब। और ये सबसे ओल्डेस्ट और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि एक वाइटल रोल प्ले करती है केब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब केब के फंक्शंस क्या हैं। इट रिव्यूज़ द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, अप्रेजेस द एजुकेशनल पॉलिसीज implemented by the state and central government, and also advises the central and the state governments about the coordination of various non-government and government agencies for the betterment of educational development of the कंट्री। क्रक्स क्या है इसका कि टाइम टू टाइम जो है वो अप्रेजल और इवेल्युएशन करती है, उसके बाद सजेशंस देती है जो भी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन ऑर्डर टू कि क्यों अपनी सजेशन देती है कि ये दोनों जो गवर्नमेंट्स है स्टेट और सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशनल कंडक्शन प्रॉपरली कर पाए, ठीक है जी। क्राइटेरिया सेट कर देती है और साथ में क्या करती है, दोनों में लिंक बना के रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में कोलैबोरेट करवाती है कौन, केब। लिंकर, ये क्वेश्चन भी आया था, हु इज़ द लिंकर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कौन है जी, ये केब ही है, ठीक है जी। सो केब इज़ लिंकिंग पॉइंट, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। फोर्थ में आएगा आपका स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन। फोर्थ डोमेन है प्लानिंग का, ठीक है जी। प्लानिंग का फोर्थ डोमेन है स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें कौन कौन सी बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स की काउंसिल आ रही है, इस पे क्वेश्चन आया था। कौन कौन सी हैं ये आप याद कर लीजिए कि स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन में कौन कौन सी स्टेट काउंसिल्स बनी हुई हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल, ठीक है जी, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। तो ये सब तरह की 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह की स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन जो है प्रॉपर बनी हुई हैं। और इनका काम क्या होता है मैं आपको सिर्फ कट शॉर्ट में बताती हूँ। इसमें हर एक चीज़ के बारे में, आंध्र प्रदेश का अलग होता है थोड़ा क्राइटेरिया, गुजरात का कुछ अलग होगा, अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपनी अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं और पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाती हैं। लेकिन इन सब का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन का, कि स्टेट काउंसिल्स एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्टेट काउंसिल्स एडवाइस द गवर्नमेंट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन भी आया था, इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स, budgets and financial policies and even other critical issues facing the state।
स्टेट अपनी अपनी तरह से कोई क्रिटिकल इशू फेस कर रहा है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो है ये काउंसिल जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग करती है, बजट्स जो है वो बजट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो हेल्पफुल होती है, एंड हर तरह की जो अपने स्टेट वाइज जो भी पॉलिसी एजुकेशनल जो पॉलिसी बनानी है उसमें जो है प्रॉपर काउंसिल जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो ये काउंसिल्स का मेन मकसद होता है, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ कौन कौन सी, हाँ जी कौन कौन सी, MHRD, AIU, केब एंड स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन। अब सेकेंड जो डोमेन है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन का, उसका हम सेकेंड डोमेन करते हैं एक्रीडिएशन बॉडीज़। एक्रीडिएशन बॉडीज़ में कौन कौन सी, वैसे तो बहुत सारी एक्रीडिएशन बॉडीज़ हैं, लेकिन हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से दो जो है हमने करनी है फुल फ्लेज, क्योंकि इन दोनों में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर एक सेट में दिख जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। सो NAAC NAC और NBA इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ठीक है जी, इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है जी। क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए, क्वालिटी को बूस्टअप करने के लिए जो है NPE ने, जो 1986 में NPE बनी थी, उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया इंडिया में कि हमने एक्रीडिएशन काउंसिल्स बनानी है। इट वॉज आफ्टर दैट नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन वॉज फॉर्म्ड अंडर ऑल इंडिया Council of Technical Education and the National Assessment and Accreditation Council under the UGC। हाँ जी, ये क्वेश्चन आता होता है, ध्यान से सुनिए। जो NBA है वो किसके अंडर फॉर्मुलेट हुई थी, AICTE के अंडर। NBA was formulated under the AICTE and NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल किसके अंडर आती है, UGC के अंडर, ठीक है जी। ये पॉइंट्स जो है इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करके क्वेश्चंस बनाते हैं वो, ठीक है जी। सो NAAC इज अंडर UGC, NBA इज अंडर दी AICTE। So goal of the accreditation bodies is to inform interest groups such as the students, parents, employees about the standards of the institution and to encourage quality improvement of the education through self-assessments and recommendations administered by the bodies। मेन काम क्या है accreditation body का, कि आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, क्वालिटी इंप्रूव करना किसकी, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए पॉलिसीज़ बन गई, ठीक है जी, प्लानिंग हो गई, ये कोर्सेज लॉन्च हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद इवेल्युएशन कौन करेगा, ये इवेल्युएशंस के लिए जो है एक्रीडिएशन काउंसिल्स बनी है, ठीक है जी, रिजल्ट्स चेक करने के लिए कि कितनी इंप्लीमेंट हो रही, कितनी नहीं हो रही है। तो UGC के अंडर NAAC है, AICTE के अंडर NBA है, ठीक है जी। आप स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट भी देख रहे हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है बिकॉज इसका थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कैप्चर किया है कि आपको डिटेल, बिकॉज NBA और NAAC में से क्वेश्चन पक्का ही आता है, चाहे इसकी फंक्शनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी, ये कौन कौन से ग्रेड्स लेवल प्रोवाइड करता है उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। सो ये डिटेल में करेंगे। सबसे पहले NAAC की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। NAAC सबसे पहले करेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर UGC। अब ये सिर्फ सुन लीजिएगा मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, डिटेल में मैंने इसको बनाया है, बस आपका सुनने का काम है और दिमाग में बिठाने का काम है। इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर UGC इन 1994 with the objective of maintaining quality higher education in India, especially the NAAC accreditates the central, state, private and deemed to be universities, institutions of national importance and affiliated and autonomous colleges। ये किस किस को एक्रीडिएट करती है, ये सबको एक्रीडिएट करती है, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड एफिलिएटेड एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस, सबको ही ये क्या करती है, रैंक प्रोवाइड करती है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल फॉर एक्रीडिएशन ओनली आफ्टर they have had 2 rounds of graduates or have been in existence for 6 years whichever comes first। ये एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया के ऊपर जो है NAAC इवेल्युएशन होती है। सो प्रोसेस क्या है NAAC इवेल्युएशन का, To start with the process of accreditation, the institution must submit a letter of intent which requires background information about the institute such as programs it offers, its history, recognition by the UGC। ये सब जो है एक्रीडिएशन करवानी ज़रूरी होती है हर एक इंस्टीट्यूशन को हायर एजुकेशन के, और वो क्या कैसे जो है प्रोसेस को स्टार्ट करती है, बाय सबमिटिंग द लेटर ऑफ इंटेंट, जहाँ पे उस
क्या होता है कि इट रिक्वायर्स द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूट सच एज प्रोग्राम्स इट ऑफर्स इज हिस्ट्री एंड रिकॉग्निशन बाय द यूजीसी. इंस्टीट्यूशन सीकिंग एक्रीडिएशन बाय द NAC फॉर द फर्स्ट टाइम आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिटी असेसमेंट फॉर्म. ये क्वेश्चन आया था कि जिसने फर्स्ट टाइम अपनी NAC से एक्रीडिएशन करवानी है उसको कौन सा फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता है. यूजीसी में क्वेश्चन आया था कौन सा फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता है. हाँ जी, इंस्टीट्यूशनल एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिटी असेसमेंट फॉर्म. Institutional eligibility for quality assessment form. This form requires background information on the program, staff, faculty, students and facilities. Once these forms are submitted, a peer team visits the institution and the accreditation decision is made under the team's report and grade sheets have been assessed. आपको 1 by 1 सब कुछ पता लग रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है. ठीक है जी. दिस इंस्टीट्यूशंस कैन अपील द एक्रीडिएशन ग्रेड इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. अब ये NAC के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो भी उसने पैरामीटर सेट किए हैं उस पैरामीटर्स को इंस्टीट्यूशंस जो है वो फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही. ठीक है जी. सो यहाँ पे इवेल्युएशन बाय द NAC इज बेस्ड ऑफ 7 क्राइटेरिया. इस क्राइटेरियाज पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि NAC के कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, ये माइंड में बिठा लीजिए. लर्निंग का सारा ये जो आज के कंसेप्ट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अब ये खुद हम अपने आप नहीं कुछ बना सकते. इसमें क्या है, आपको लर्न करना पड़ेगा. 7 क्या है इवेल्युएशन क्राइटेरियाज है. करिकुलम एस्पेक्ट्स. ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक्रीडिएशन इन 7 पॉइंट्स के, ये पैरामीटर्स हैं, इन 7 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो करती है. करिकुलम एस्पेक्ट. सेकेंड इज टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन प्रोसेस. थर्ड इज रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन. फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज. फिफ्थ वन इज स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन. सिक्स्थ वन इज गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. एंड सेवंथ वन इज इनोवेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है जी. तो ये 7 क्राइटेरियंस हैं जिसके ऊपर जो है NAC इवेल्युएशन करती है. सो एक्रीडिएशन ग्रेड्स A, B, C और D एंड बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब CGPA ग्रेड्स जो हैं A, B, C, D एंड बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA ऑफ द स्कोर्स review received on the criteria listed above and subsections known as key aspects. ठीक है जी. इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? CGPA एंड डिफरेंट ग्रेड्स क्राइटेरियंस. सो CGPA इज डिराइव्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अ वेटेड स्कोर ऑफ द की एस्पेक्ट्स एंड क्राइटेरियंस एंड अ वेटेड एवरेज ऑफ द क्राइटेरियन पॉइंट्स. ये उसकी क्या है, ग्रेडिंग का सिस्टम है. ये भी थोड़ा देख लीजिए. वैसे इतना इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर हमने क्यों छोड़ना है. अगर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये भी देख लीजिए ध्यान से क्या है. सो A grade of A, B और C means that institution has been accredited. जहाँ पे A grade of A, B and C means the, अगर A, B, C में से कोई grade है, it means the institution is properly accredited. They stand for very good, good and satisfactory respectively. A grade of D, ठीक है जी. D ग्रेड अगर मिलता है, इट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री एंड इट इज़ नॉट एक्रीडेटेड बाय द NAC. जिस इंस्टीट्यूशन को D ग्रेड मिल जाता है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट up to the mark. That institution is not up to the mark of the parameters of the NAC. तो A, B, C accreditation हो जाता है अच्छे से. जब D ग्रेड मिलता है, इट मीन्स वो accreditation नहीं माना जाता और वो प्रॉपर जो है पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं कोई इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. सो द पॉइंट्स फॉर विच ऑफ द क्राइटेरिया आर अलॉटेड डिफरेंटली फॉर, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए, एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज जो है रैंकिंग के अलॉट किए जाते हैं NAC के द्वारा. अकाउंटिंग फॉर द डिफरेंस इन द वे ईच फंक्शंस. सबके लिए अलग अलग पैरामीटर्स है. यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग पैरामीटर्स, ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के NAC के लिए, एंड एफिलिएटेड कॉलेज के लिए अलग तरह के. ठीक है. मोर पॉइंट्स आर अलॉटेड टू द टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्यूशन क्राइटेरियंस फॉर ऑटोनॉमस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस. ठीक है जी. सो एफिलिएटेड एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो कहाँ दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस कहाँ दिया जाता है, टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्यूशन क्राइटेरियंस को ऑटोनॉमस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं NAC. देन फॉर दी, आगे चलते हैं. Then for the universities, whereas universities are allotted more points for research consultancy and extension criterions.
ठीक है जी। यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा फोकस किसको करते हैं? रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन क्राइटेरियंस। अगर हम ऑटोनोमस कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा किसको फोकस करते हैं? नैक जो डेलीगेट्स हैं किसको ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो उनका टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन प्रोसेसेस हों। ठीक है जी। अब नैक हो गया डिटेल में, बहुत डिटेल में करवा दिया। ये जो भी ये मेरे वीडियो देख रहा है, कोई भी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, वो ये समझ लें कि मैंने हर एक इंस्टीट्यूशन बहुत डिटेल में कवर की है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई मटेरियल नेट से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ पे है। आपके नोट्स मेरी ये प्रेजेंटेशंस हैं आपके लिए। आप चाहे इस वीडियो को 10 बार देखें, 20 बार देखें, जितनी बार मर्जी देखें, बार बार दिमाग लर्निंग के लिए बार बार देख लीजिए। नोट्स भी हैं, मैं आपको समझा भी रही हूँ, डिटेल भी है हर एक इंस्टीट्यूशंस की। तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस चैनल। नेक्स्ट चलते हैं एनबीए की तरफ। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय AICTE इन 1987 विद द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग टेक्निकल प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे एक डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट होता है कि जो नैक है वो टेक्निकल एजुकेशन को एक्रीडिएट नहीं करता। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को या टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को एक्रीडिएशन नहीं देता नैक। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक्रीडिएशन काउंसिल कौन सी है? NBA। टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो है NBA इवेल्युएटिंग काउंसिल है। ठीक है जी। It became an autonomous accreditation body in January 2010 with a mission to ensure the technical and professional institutions, including those in the engineering, technology, architecture, pharmacy, and hospitality fields, are providing relevant and quality education. Technical institutions volunteer to be accredited by the NBA. टेक्निकल एजुकेशन कौन कर रहा है एक्रीडिएट? NBA। एंड नॉन टेक्निकल एजुकेशन कौन एक्रीडिएट कर रहा है? वो NAC कर रहा है। ठीक है जी। अब इसका प्रोसेस क्या है एनबीए का? द एक्रीडिटेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, SAR बनती है सबसे पहले, विच इज़ टू बी फिल्ड आउट बाय द इंस्टीट्यूशन बाय द प्रोग्राम्स दैट आर अप्लाइंग फॉर एक्रीडिएशन। सो SAR कवर्स द फॉलोइंग क्राइटेरियन। कौन कौन से क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो इवेल्युएशन और एक्रीडिशन होती है? इसके अलग अलग होते हैं। वहाँ पे 7 किए थे हमने, नैक के 7 क्राइटेरियंस किए थे, और यहाँ पे टोटल कितने हैं? एनबीए के 9 क्राइटेरियंस हैं जिसके ऊपर एवेल्युएशन होती है। सबसे पहले मिशन, विजन एंड प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या है? प्रोग्राम आउटकम्स। तीसरा क्या है? प्रोग्राम करिकुलम। फोर्थ इज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। Fifth is faculty contributions. Sixth is facilities and technical support. Seventh is academic support units and teaching learning processes. Eighth is governance, institutional support and financial resources. And ninth is continuous improvement. अब आपने एक और डिफरेंस देखा होगा NBA और NAC में कि NAC जो है बेसिकली क्या करता है? इंस्टीट्यूशंस को रैंक देता है। नैक क्या है? बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को रैंक देता है। लेकिन जो एनबीए है वो इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली रैंक नहीं दे रहा। वो जो प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रही है इंस्टीट्यूशंस, उन प्रोग्राम्स को जो है वो एक्रीडिएट कर रहा है। बेसिकली एनबीए क्या है? करिकुलम को, प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को, या जो भी कोर्सेज जो है वो दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या ऑटोनोमस बॉडीज़, उनके प्रोग्राम्स एंड उनके जो भी एकेडमिक प्रोसीजर्स को जो है वो ग्रेड कर रही है एनबीए। ठीक है जी। ना कि डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस को। डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस को कौन कर रही है? नैक कर रही है। ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको 2 डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं एनबीए और क्या करती है। और आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, वंस द SAR इज कंप्लीटेड द एनबीए कंस्ट्रक्ट अ टीम ऑफ 1 चेयरमैन एंड 2 इवेल्युएटर्स टू इवेल्युएट द प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए फिर प्रोग्राम को, मतलब आप 2 डिफरेंस हो गए हैं। एक प्रोग्राम को कौन इवेल्युएट करता है और टेक्निकल एजुकेशन को कौन इवेल्युएट करता है? एनबीए। ठीक है जी। और इंस्टीट्यूशंस को एंड नॉन टेक्निकल एजुकेशन को कौन कर रहा है एक्रीडिएट? वो नैक कर रहा है। ठीक है जी। सो द टीम प्रिपेयर्स अ प्री विजिट रिपोर्ट बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशंस ऑफ SAR. A 3-day visit to program is set up for the evaluators to note the strengths, weaknesses, concerns and deficiencies of a program based off of the criteria. The reports and notes of the evaluators are passed to NBA to draft a report, which is also sent to the institution to check for any factual errors. The report is once looked over the NBA and a final accreditation status is granted. The institution can appeal the granted status if it is not satisfied. ठीक है जी। There are 2 different evaluation
रब्रिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो ये एक थोड़ा और डिटेल में चला गया। टायर 1 टायर 2 दो तरह के जो है वो 2 डिफरेंट इवेल्यूएशन रब्रिक्स होते हैं। टायर 1 में क्या है, रादर इसको टीयर 1 बोलेंगे, TIE। टीयर 1 रब्रिक में क्या है, फॉर कंसिस्टेंट कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। टीयर 2 में क्या है, इट इज ऑफर्ड टू द नॉन ऑटोनोमस। यहाँ पे क्या है, टीयर 1 इज फॉर द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एंड टीयर 2 इज फॉर द नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस दोज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। द इवेल्युएशन क्राइटेरिया इज द सेम फॉर बोथ टीयर्स, हाउएवर टीयर 1 गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू outcome oriented criterion such as vision, mission and program educated objectives and program outcomes, right? इतनी डिटेल में भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैंने जो करवाना था वो करवा दिया है। टीयर 2 क्या कर रहा है, हैज़ लेस ऑफ द फोकस ऑन दीज आउटकम्स ओरिएंटेड क्राइटेरिया एंड अ ग्रेट फोकस ऑन द इनपुट सच एज फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो ये 2 टीयर्स हैं किसके, NBA के। जो एक टीयर में वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट कर रहा है, दूसरे टीयर में वो क्या कर रहा है, नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट कर रहा है। अब ये ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन, जो अपने आप डिसीजन खुद लेते हैं। नॉन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जो अपने डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी। सो NBA असाइंस द इंस्टीट्यूशंस वन ऑफ द 3 पॉसिबल स्टेचर्स फॉर एक्रेडिएशन। 3 तरह के जो है वो डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स देते हैं एक्रेडिएशन के। एक्रेडिएशन, प्रोविजनली एक्रेडिएटेड एंड नॉन एक्रेडिएटेड। ठीक है जी। एक्रेडिएटेड, प्रोविजनली एक्रेडिएटेड एंड नॉन, 3 तरह के ग्रेड्स देते हैं। वहाँ पे कितने तरह के थे, NAC में 4 तरह के, ABCD, और यहाँ पे 3 तरह के हैं। कौन कौन से, एक्रेडिएटेड, प्रोविजनली एक्रेडिएटेड एंड नॉन एक्रेडिएटेड। द इंस्टीट्यूट रिसीव अ स्टेटस ऑफ एक्रेडिटेड फॉर अ 5 years। ठीक है, 5 साल के लिए जो है इंस्टीट्यूशन को जो है एक्रेडिटेशन मिलती है। इफ़ इट गेट्स अ मिनिमम ऑफ 750 पॉइंट्स एंड मिनिमम if gets the minimum of 750 points and a minimum of 60% in each of these 9 criterions। ये बस उसका जो है वो बताया हुआ कौन कौन से क्राइटेरिया में कैसे फुलफिल करते हैं। अ स्टेटस ऑफ प्रोविजनली एक्रेडिएटेड इज रिसीव्ड फॉर 2 years if the institute receives a score of at least 600 points irrespective of the percentage received in each criteria। Finally, the status of non-accredited is assigned if the institute gets less than 600 points in the evaluation। तो ये क्या है, डिफरेंट जो है वो ग्रेड्स बनाए हैं उन्होंने कि एक प्रोविजनली एक्रेडिटेड का क्या पॉइंट सिस्टम है, एक्रेडिटेड का क्या पॉइंट सिस्टम है, नॉन एक्रेडिटेड का क्या पॉइंट सिस्टम है। ठीक है जी। तो ये सारा था NBA के रिगार्डिंग। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। और आज के इस जो है बेसिकली हमने यही किया था कि पॉलिसी डोमेन सारे कर लिए हैं और साथ में क्या कर लिया है हमने, एक्रेडिएशन काउंसिल्स। अब कल नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन का पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें हम क्या करेंगे, रेगुलेटरी और अपेक्स बॉडीज ऑफ द हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग UGC, AICTE, NCERT, ये जितने भी हैं, BCI, MCI, PCI, ये सारे करेंगे। ठीक है जी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और कोई भी अगर क्वेरी है आज के वीडियो में, या जो भी आप वीडियो देखते हैं, कभी भी देखते हैं, फिर भी कोई क्वेरी आपको आए तो प्लीज़ उस साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन सी आपकी क्वेरीज़ हैं। हम साथ साथ में जो है आंसर्स भी देते हैं। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, इवन कि बहुत सारे एनकरेजमेंट वाले हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि यू आर डूइंग वंडर्स एंड यू आर गिविंग 100% फ्री एजुकेशन टू अस। थैंक यू सो मच। मतलब इतना ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है आप लोगों से, लव सपोर्ट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है जी। और हमें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी लाइकिंग्स चाहिए, आपकी कॉन्टीन्यूअस जो है वो शेयरिंग चाहिए इस चैनल के लिए। ठीक है, ताकि वह इंडिया के हर एक कोने तक पहुँचे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।